So good morning students. So in the last class I have completed up to question 5 exercise 13.4. So I told you to solve question number 6 and 7, but 7 I'll show you, but you have to try question number 7. So if you have got any difficulty, then you can ask me and then I'll show you. So in question 7, what is given? A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. तो इसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन जिसका निकालना है वो x होगा. तो इसमें क्या दिया है? सो हम लोग इसको x मानना होगा. सो लेट x denotes the number of tails when a coin is tossed. A biased coin is tossed twice. तो bias coin मतलब क्या है? Such that the bias means probability of getting head and tail they are not of equal chance. So probability of getting head is 3 times of probability of getting tail. This is given. So they are not equally likely. मतलब bias का मतलब है कि it is not unbiased. Unbiased means the probability of getting head and tail equal होगा and equal to half होगा. But in this case they are biased and such that this condition holds when you toss the coin once. So under this condition हमको निकालना है कि distribution for x. तो पहले हम pH and PD को निकाल लेते हैं. So pH equal to 3 PT. तो इसमें pH मतलब probability of getting head and PT means probability of getting tail. अब ये दोनों का वैल्यू हम कैसे मिलेगा देखो. सो नाउ यू कैन गो बाय व्हाट फॉर व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस. तो हम लोग एक बार टॉस करेंगे तो और जो गेटिंग एंड हेड उसका तो सम 1 ही होगा ना. तो नाउ व्हाट इज पीएच? दिस इज 3 PT प्लस PT इक्वल टू 1. सो probability of getting tail is equal to 1 by 4. So therefore you will get pH also. Probability of getting head is कितना होगा? 3 by 4 होगा. तो ये दोनों हमको मिल गया. Now you can go for number x, go for the random variable x. तो in this case you see x denotes the number of tails बोला है. तो the values of x, तो x takes the values क्या क्या होगा? क्योंकि दो बार टॉस किया है तो नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो सकता है? मे बी दैट नो टेल, मे बी दैट 1 टेल एंड मे बी दैट 2 टेल. क्योंकि दो बार टॉस किया तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स यू हैव गॉट. देन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब है कि गेटिंग नो टेल, मतलब फर्स्ट में भी हेड मिला है और सेकेंड में भी हेड मिला है. तो कितना होगा? तो हेड का होगा 3 by 4 into 3 by 4. So it is 9 by 16. Similarly, getting one head. तो one head का हम लोग का दो आएगा. एक तो आएगा getting head in the first, getting tail in the second, और getting tail in the first and getting head in the second. दो केस आएगा. तो इसमें for the first case 3 by 4 into 1 by 4 plus 1 by 4 into 3 by 4. So 6 by 16. Then 2 का होगा क्या? Getting tail in both the case. So getting tail in the first case 1 by 4, second case 1 by 4, so it is 1 by 16. तो देखो तो तीनों का सम देखो 9 by 16, 6 by 16, 1 by 16. Total sum is 16 by 16, so it is 1. So therefore this represents the probability distribution. So now you have to just
just you have to write the distribution in table. So therefore the probability distribution of x be as follows. So just show the table. तो टेबल के लिए बेटर होगा टेक रेक्टेंगल ले लो, बेटर होगा। इसमें 3 4 आएगा तो 3 वैल्यूज है तो ये इतना होगा हो जाएगा। सो नाउ थोड़ा सा आगे कर देते हैं एंड देन जस्ट टू डिवाइड, इसके लिए लाइन चाहिए। टेक द लाइन इन अनदर कलर। तो मान लो ये है x, तो इसमें आएगा x भी x, ओके x, फिर नेक्स्ट आएगा 0 1 2 ना, 3 वैल्यूज है तो 3 वैल्यू के लिए 3 पार्ट चाहिए। फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। तो ये हो गया x, सॉरी, तो दिस इज x एंड दिस इज px। द वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 2। तो फर्स्ट हो गया 9/16, then 6/16 and 1/16. So this is the distribution there you have got. Okay, now go for question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक टेबल दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू हैव टू फाइंड आउट देयर वैल्यू। सो उसके लिए पहले हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना होगा। तो probability distribution of x given as, तो इसमें हम लोग टेबल में दिखाना होगा तो शो बाय टेबल। तो टेबल के लिए तुम लोग ऐसा करो, ये थोड़ा लंबा टेबल होगा तो इसलिए हमको स्पेस ज़रा सही है, लेकिन स्पेस तो इतना ही है, इसको ही हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है। तो जस्ट गो फॉर लाइंस। तो कितना लाइन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 कंपार्टमेंट्स है, 8 लाइन्स है होगा तो बहुत छोटा छोटा दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ में एक हो गया है, एक, तो 2 then 3 then 4 then 5 then 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 आएगा। तो लास्ट में थोड़ा सा बड़ा सही था 8 9, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होने से अच्छा था, लेकिन उपाय नहीं है। तो एक लाइन जाएगा इन बिटवीन, तो थोड़ा सा ऊपर इसको खींचना है क्योंकि इसमें हम लोग को ऊपर में जगह ज़्यादा नहीं चाहिए। ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर खींचना है। यहाँ में खींचना ठीक होगा। तो अभी नाउ गो फॉर दिस इज x and value 0 1
2 3 4 5 6 7 तो px तो 0k 0k 2k 2k ये सब प्रॉब्लम नहीं है 3k then k square then 2k square ये भी प्रॉब्लम नहीं है जस्ट लास्ट वाला प्रॉब्लम है 7k square plus k 7k square plus k तो इसलिए हम दो लाइन में लिख रहे हैं काम करते हैं 7k square plus k तो ये है हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ में पहले हमको k को निकालना है उसके बाद सम वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर k तो k तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 सो एज वी नो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मतलब 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 सो यहाँ से हम लोग k को निकाल सकते हैं तो कितना हो गया टोटल 10k स्क्वायर हो गया 10k स्क्वायर प्लस 4k 5k 8k 9k हो गया एंड देन प्लस प्लस कितना है प्लस तो है नहीं तो 10k स्क्वायर प्लस k ना और तो नंबर्स तो है नहीं तो इक्वल टू सॉरी वो 0 नहीं होगा ना इक्वल टू 1 होगा ये तो हम गलती कर दिया इट मस्ट बी 1 then if you take it into left hand side there will be minus 1 equal to 0 and now this can be factorized 10k square so 10k minus k minus 1 equal to 0 so you can take common 10 एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 10k कॉमन आएगा so there is 10k is common so k plus 1 आ रहा है minus k plus 1 equal to 0 so the first part is 10k minus 1 into k plus 1 equal to 0 so first value you will get 1 by 10 and second value is minus 1 so minus 1 is not possible but k equal to minus 1 is not possible क्यों possible नहीं है because as probability never be negative ठीक है तो दिस इज द एक्चुअली रीजन इसके लिए ये -1 नहीं होगा सो k का वैल्यू 10 होगा सो therefore the correct value of k is 1 by 10 तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन अभी बाकी क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 लेस देन 3 का मतलब जितना x का वैल्यू है जो 3 से लेस है सबको लेना है तो देखो इसमें टेबल में जो टेबल हमको दिया है इसमें लेस देन 3 मतलब 0 1 2 तो लेस देन 3 मतलब ये तीन वैल्यूज लेना होगा एक तो हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 ये तीनों को लेना होगा बिकॉज ये लेस देन 3 मतलब हम इसको नहीं ले सकते यहाँ तक ले सकते ये तीनों को लेना होगा ठीक है ये तीनों का सम हमको निकालना है सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट जस्ट गो थ्रू इट तो क्या क्या आएगा इसमें 0 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2 आएगा अप टू 2 ओनली अप टू टेक सो सबका वैल्यू पता है इसका 0 है इसका k और इसका 2k so you have got 3k and k is what 1 by 10 so it is 3 by 10 so similarly you can go for 3
x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मतलब जो 6 से ग्रेटर है वो एक ही है, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 7 होगा। और इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या होगा 7 मतलब 7 के स्क्वायर प्लस के। तो इसमें वैल्यू को के का वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू पुट करेगा तो ये होगा 7/100 प्लस 1/10, तो इट इज़ 17/100 होगा। दैट्स ऑल। तो ये हो गया सेकेंड। और थर्ड का तुम लोग कर लेना, 0 एंड 3 का इसमें जस्ट 1 एंड 2 आएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो ये है। तो ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 को तुम लोग ट्राई करो, इससे तुम लोग का ये क्वेश्चन का जो आइडिया है वो तुम लोग फॉलो कर सकते हो, सेम एज क्वेश्चन 8। सो यू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। तो अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तक हम लोग कोई मीन वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं किया है। अभी हम लोग को क्वेश्चन कराएंगे मीन वेरिएंस का। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन तो किया ही है, एक मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, उसमें हमको मीन निकालना है, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स का इन 2 टॉसेस तो किया ही है हम लोग, इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करने से ठीक होगा। यू जस्ट डू इट एज यू हैव डन, एज आई हैव डन ए क्वेश्चन इन द लास्ट टू लास्ट क्लास। तो हम इसलिए दूसरा क्वेश्चन को दिखाएंगे जिसमें मीन तो निकालना ही है। तो मीन का क्वेश्चन बहुत है, इसीलिए डोंट वरी। सो कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को करना होगा और कुछ क्वेश्चन हम दिखाएंगे। इसमें हमको दिया है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाई को थ्रो किया है, एंड x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब है कि मीन ही निकालना है। इट इज़ द अनदर नेम जो हम बोला था तुम लोगों को, EX जो है ना, EX का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इसीलिए जब भी तुमको दिया होगा फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, इट इज़ नथिंग बट मीन। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हमको दिया है, यहाँ पे हमको इसमें दिया है गिवन, क्या गिवन है, x। तो व्हाट इज x? डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। x denotes the number of sixes when 2 dice are thrown simultaneously. When 2 dice are thrown simultaneously. एक्चुअली देखो, 2 डाई को एक साथ थ्रो करना और एक डाई को 2 बार थ्रो करना, इसमें सेम ही होता है, देयर इज़ नो डिफरेंस, आउटकम विल रिमेन सेम। सो इन दिस केस 2 बार थ्रो किया तो कितना 6 आ सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 2 आ सकता है और मिनिमम नो 6 भी आ सकता है। तो इसलिए नंबर ऑफ 6 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सो देयरफॉर x takes the values 0 1 2, सिर्फ 3 ही वैल्यूज लेगा। अभी हमको तीनों का पहले प्रोबेबिलिटीज को निकालना है। 0 का मतलब व्हाट? गेटिंग नो 6 ना, तो इसका मतलब दोनों में 6 नहीं मिला है। तो कितना केस में 6 नहीं होगा? मतलब ऐसा आउटकम होगा जिसमें 6 नहीं होना है। तो 6 नहीं होना तो कितना ऐसा आउटकम्स है? क्योंकि टोटल 36 आउटकम्स होगा जब 2 डाई को थ्रो करते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नो 6 इन द फर्स्ट, नो 6 इन द सेकेंड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो गेटिंग नो 6, एक काम करते हैं हम लोग, उसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए एक काम कर सकते हैं, हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करना होगा, वी टेक P, लेट, हम लोग एज्यूम किया P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, ठीक है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो गेटिंग ए 6 तो 1/6 होगा, और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6। तो 6 नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6 मतलब
कोई भी अदर नंबर आ सकते हैं, सो 5/6। तो ऐसे रखने से हम लोग का अभी आसान ऐसा होगा कि सपोज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालने जा रहे हैं, गेटिंग नो 6 इन द फर्स्ट मतलब क्यू एंड गेटिंग नो 6 इन द सेकेंड, क्यू इंटू क्यू होगा। तो 5/6 इंटू 5/6, तो ये हो गया 25/36। देन 1 में ऐसा तो एक 6 मिलेगा, तो ये 6 फर्स्ट में भी मिल सकता है, सेकेंड में भी मिल सकता है, इसलिए एक बार ऐसा लेना होगा, गेटिंग 6 इन द फर्स्ट, नो 6 इन द सेकेंड, एंड नो 6 इन द फर्स्ट एंड 6 इन द सेकेंड। दोनों कैसा आएगा, लेकिन दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, सो इट इज़ टोटल 10/36। नेक्स्ट गेटिंग 2, तो दोनों में 6 मिला है, मतलब p इंटू पी, तो 1/6 1/6, सो इट इज़ 1/36। तो 25 10 35 प्लस 1 36/6। तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं, उसके बाद मीन को निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको टेबल बनाना होगा, सो यहाँ में स्पेस कम हो जाएगा, सो यू गो इन द नेक्स्ट स्पेस जिसमें हम लोग टेबल को बना के इसको दिखा सकते हैं। तो टेबल के लिए हम लोग को ऐसा होगा कि इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि 3 रो होगा, देयर विल बी 3 रोज। तो तीनों रो ऐसा होगा कि इतना बड़ा भी नहीं, लेकिन 3 रो होगा। तो फर्स्ट रो तो एकदम छोटा होगा, सेकेंड रो भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन थर्ड रो में हम लोग को सेकेंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो सेकेंड एंड थर्ड में ऑलमोस्ट सेम होगा, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ में 4 कॉलम्स आएगा ना, तो फर्स्ट आएगा एक्स का, एक्स एंड तो उसके बाद 0 1 2, पहला आएगा 0 का, दूसरा 1 का, तीसरा 2 के लिए। तो अभी तक हम लोग का जो क्वेश्चन हो रहा है इसमें ज़्यादा कॉलम नहीं है, तो लिखने के लिए आसान हो रहा है, लेकिन जब ज़्यादा होगा तो बहुत कैलकुलेशन होता है। 0 1 2 एंड देयर इज़ पी एक्स कितना था पहले का, 25/36 था, और दूसरा का था 10/36, और तीसरा था 1/36। तो मीन के लिए हम लोग को और एक कॉलम चाहिए और एक रो चाहिए, x इंटू पी एक्स, मतलब यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट दिस। तो इधर का प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, इसमें आएगा 10/36 और इसमें आएगा 2/36। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही लिखते हैं, x that is what, ex, and is equal to what, you just take their sum, summation of x into px। फिर इसको ये लाइन को लिखना ज़रूरी नहीं है, सॉरी ये लाइन तुम नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं, यू हैव टू टेक द सम देयर। तो क्या होगा, 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36, so it is 12/36, so it is 1/3, so that is the value, 1/3 is the value there। तो ये हो गया। तो इसलिए जब बड़ा टेबल आएगा तो हम जस्ट तुमको हिंट्स देंगे, तो तुम लोग को बाकी पार्ट को कंप्लीट करना होगा। हम x को निकाल लेंगे, क्योंकि x को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी तुम लोग कर लेना। सो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में हमको क्या दिया है, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब सेम नंबर्स नहीं आएगा फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड x0 द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन, द फाइंड ex। इसमें भी हमको मीन निकालना है। यहाँ में हमको पहले ये जानना है कि
यहाँ में हम लोग एक काम करते हैं, यू टेक द इवेंट एज, यहाँ में जो नंबर्स हैं, नंबर्स आर व्हाट 1 से लेके 6 तक है। सो लेट हम लोग इसमें सैम्पल स्पेस को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ना, ये नंबर्स है। तो यहाँ से बोला है कि 2 नंबर्स निकाला है। एस मतलब ये जैसे सैम्पल स्पेस नहीं है, ये इसको एक काम करो, तुम लोग कन्फ्यूज हो सकता है, ये सैम्पल स्पेस नहीं है, दिस इज जस्ट एन सेट हम लोग लिया है, जस्ट एन इवेंट वी हैव कंसीडर। तो यहाँ में जो गिवेन है पहले उसको लिखते हैं। गिवेन है x denote the larger of the two numbers obtained when two numbers are selected at random, are selected two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers, from A लिख देते हैं, यहाँ से निकाला है from A। ओके, नाउ देखो 2 नंबर्स निकालेंगे, उसमें से लार्जर को हम लोग x मानेंगे। तो इसका s का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ में से कोई भी जो नंबर निकालेगा तो लार्जर 1 तो कभी नहीं होगा, 2 हो सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। और या फोर x टेक्स द वैल्यूज क्या होगा, x टेक्स द वैल्यूज 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 नेवर ओकर। अभी देखना है कि इसमें 2 कब आएगा, 3 कब आएगा। तो उसके लिए तुम लोगों को एक काम करना होगा, यू कैन डू वन थिंग, you can make the sample space, then it will be easy for you. तो if you make the sample space, तो कैसा होगा देखो, जब 2 नंबर्स निकालेंगे तो it will be like 1 2 होगा, 1 1 2 होगा नहीं, या 1 3 होगा, या 1 4 होगा, या 1 5 होगा, या 1 6 होगा ना। और क्या हो सकता है, 2 से लगा तो 2 1 2 आ ही गया, या ऐसे लगे तो इसमें 2 1 को भी ले सकते हो, 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, देन 2 6 आएगा ना। देन 3 1 लेगा तो 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, लेकिन 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5 एंड 3 6। देन 4 का लेगा तो 4 1 4 2 4 3, देन 4 4 नहीं आएगा, 4 5 एंड 4 6। देन 5 का लेगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 6, 5 5 नहीं होगा। फिर 6 का लगा तो 6 1 6 2 6 3, सॉरी हेलो ছাৰ কি আহিলে নেকি? নাই যোৱা নাই ৰ'বা, মই এই ক্লাছ এটা মাৰি আছিলোঁ। কেতিয়া? অঁ, ক্লাছ মানে এই ৰেকৰ্ডিং মাৰি
So 6 3, then 6 4, sorry. तो 6 से ना सॉरी 6 4 10 6 5। तो एक्चुअली ये पूरा को लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, लिखने से आसान होता है लेकिन ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा ना, ज़्यादा नंबर्स होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो उसका दूसरा तरीका भी है उसको करने का, तो हम बताएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ऐसा तरीका से क्या होगा। तो टोटल आउटकम्स कितना है हम लोग का 30 है, क्योंकि इसमें 6 नंबर्स नहीं है, 5 5 करके 6 रोज़ है ना। तो दो कौन कौन केस में मिल सकते हैं, एक दो, ये दो ही केस है जिसमें मिल सकता है। तो इट इज़ व्हाट 2/30 होगा। सो इट इज़ यू कैन राइट इन 15 ऑल्सो, 15 में आएगा। देन 3, कितना केस में 3 आएगा, 1 3 2 3 एंड 3 1 एंड 3 2 ना, क्योंकि 1 3 3 1 2 3 3 2 4 हो गया। सो 4/30, 2/15। देन 4 का यहाँ में लिख देते हैं क्योंकि इसमें स्पेस बाद में मुश्किल होगा। 4 का क्या होगा, हमारे केस में 4 आएगा, देखो 1 4 2 4 3 4 फिर 18 6 होगा। तो 2 4 6 6/30। सो इट इज़ 6 मत करो, 15 ही करो, तो 3/15 कर दो कैलकुलेशन हेल्प के लिए। देन 5 का ऐसे होगा, ऐसे जाएगा तो 4/15 होगा, और 6 का होगा 5/15। तो देख लो टोटल कितना होता है, 5 + 4 9 + 3 12 14 15, तो 15/15 1। तो देयरफॉर करेक्ट है। तो now you can go for the, therefore now probability distribution of x b as follows। तो यहाँ में अभी हमको टेबल बनाना पड़ेगा, लेट्स मेक द टेबल। लेकिन ये तुम लोग कर सकते हो, इसका बात तो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि हमको मीन ही निकालना है, पेरेंट्स तो नहीं। एक्सप्रेशन ऑफ एक्स मतलब मीन निकालना है, तो हम जस्ट 2 रो को निकाल लेगा, बाकी थर्ड रो को तुम लोग कंप्लीट करना है। तो यहाँ में हम लोग का अभी लाइन सही है, तो पहला एक लाइन आएगा, फिर इसमें 2 3 4 5 6 5 लाइन सही होगा ना, 1 2 3 2 3 4 5 6। ये वाला बड़ा हो गया, तो हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे हो गया, तो इसके बाद यहाँ से एक लाइन जाएगा, फर्स्ट लाइन, तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन थोड़ा बड़ा सही है, क्योंकि हमें तो एक्स सॉरी नाउ एक्स पी एक्स इंटू पी एक्स ना। तो 2 3 4 5 6, तो 2 का आया था 1/15 2/15 3/15 4/15 एंड 5/15। तो इसको प्रोडक्ट करो, 2/15 6/15 12/15 20/15 फिर 30/15। तो देयरफॉर ये एक्स का मतलब है कि समेशन ऑफ
XPS मतलब मीन ना। तो जस्ट टेक देयर सम 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 plus 30/15. So you take their sum 50, 18, 20, 40, 70. तो 70/15. So ये तो कैंसिल हो रहा है, 5 से 3, 5 से 14, तो 14/3 हो रहा है ना। तो 14/3 इज द मीन देयर। तो ऐसे ही करना है। तो इसे तुम लोग को भी क्वेश्चन करना है। तो हम इसमें अभी मीन वेरिएंस का क्वेश्चन है, तो वो आज नहीं दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन होगा दे आर फॉर मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, तीनों निकालने दिया। तो इसमें से पूरा नहीं दिखाने से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन हम दिखा देंगे। तो तुम लोग अभी जो मीन का क्वेश्चन है जो बच गया उसको ट्राई करो, एंड in the next class I will go for the remaining questions that having variance and standard deviation that remains। तो मीन तो सीख ही लिया, लेकिन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए तुम लोग को ये क्वेश्चंस को देखना होगा। 13, 14, 15, 16, 17 भी है। तो ये क्वेश्चंस है। तो दैट लेफ्ट, सो मे बी सो आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक पॉसिबल, क्योंकि इसमें टेबल में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो आज के लिए बाय।